حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ عمران البیت المقدس خراب الیثرب خروج الملحمہ فتح قسطنطنیہ خروج دجال۔ ترجمہ یہ ہے، مطلب بیت المقدس کی آبادی ہوگی تو مدینے کی ویرانی ہوگی۔ مدینے کی ویرانی تب ہوگی جب ایک دنیا میں بڑی جنگ ہوگی۔ جب بڑی جنگ ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد میں قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کے بعد میں دجال آگا۔ یہ 4 زمانے ہیں۔ ایک پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں اس پہ، فتح قسطنطنیہ جو ہے یہ ہے آج کا ترکستان جو ہے، جہاں خلافت عثمانیہ رہ چکی ہے۔ تو یہ تو اس ٹائم تو پریزنٹ میں مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمانوں کی حکومت ہے اس پہ۔ تو ان میں حدیث میں لفظ ہے فتح قسطنطنیہ، یعنی قسطنطنیہ فتح ہوا۔ اب مین بات یہ، قسطنطنیہ فتح کیوں ہوگا؟ فتح ہوگا وہ چیز جب ہوتی جب اس پہ کسی اور کا قبضہ ہو جائے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ قسطنطنیہ اس کا مطلب پہلے مسلمانوں کو ہاتھ سے جائے گا، تبھی تو فتح ہوگا۔ امام مہدی کے دور میں پہلے قسطنطنیہ مسلمانوں کا ہاتھ سے نکل جائے گا، جب امام مہدی کے ہاتھوں سے یہ فتح ہوگا 3 ناروں میں قسطنطنیہ۔ یہ کیوں چھینے گا مسلمانوں کو ہاتھ سے؟ بڑی بات یہ ہے، قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پہلے چھینے گا۔ یہ کیوں چھینے گا؟ یہ ترکی جو ہے آج کا، یہ کیوں نکلے گا مسلمانوں کے ہاتھ سے؟ استنبول جو ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ آنے کے بعد میں اس میں غیر مسلم والا ریتی رواج لاگو کیا گیا۔ اس کے بعد میں ترک جو تھا مصطفیٰ کمال پاشا، اس کی حکومت کو اکھاڑ کے پھینکا گیا جب لوگوں کو پتہ چلا گیا تو یہودی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کے بعد میں اسلام کا نظام لاگو کرا گیا، مطلب جو چیزیں اسلام میں حرام ہے ان چیزوں کو ختم کیا گیا ترکی کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں ترکی کا حالات صحیح ہوئے، یہ نیٹو میں شامل ہو گیا۔ جو نیٹو عیسائیوں کا سنگٹھن ہے بہت بڑا، جن میں 30-32 دیش ہیں، جس میں شامل ہو گئے۔ یہ ترکی کی میں مانتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی رہی ہے ترکی کو مسلمان۔ کیوں وہ نیٹو میں شامل؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کا دشمن ہے۔ نیٹو سنگٹھن جو ہے اس میں شامل ہوا، اور یہی نیٹو دنیا کا ہر مسلم دیش کو برباد کرنے میں اس کا ہاتھ رہا ہے۔ عراق کو، افغانستان کو، لیبیا کو، سیریا کو، فلسطین کو، صومالیہ کو، سوڈان کو، جو ان سے بھی ملک کو برباد کرا۔ ایران نمبر 1، اب ایران ٹارگیٹ پہ ان کے، جو ان سے بھی ملک کو برباد کرا نیٹو نے، نیٹو کی فوج نے۔ اور ترکی اس کا حصہ رہا، کبھی ترکی نے اس کی مخالفت نہ کری، کبھی ترکی اس سے نہ نکلا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں مسلمان ملک کو برباد ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے ملک چھینا گیا، کیونکہ غداری کرے دین سے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کری۔ سارا بزنس، سارے تعلقات، سارا پیسہ، ساری چیز نیٹو کا ساتھ میں، نیٹو کا ہو رہا ہے۔ نیٹو امریکہ مغرب ممالک، یہ تو اسلام کے دشمن ہے، یہ تو ظالم ہے بالکل، ان لوگوں کا ساتھ رہا۔ ایک غلطی یہاں یہ رہی، عراق برباد ہوتا رہا، جتنے بھی مسلم دیش برباد ہوتا رہا، نیٹو کے خلاف نہیں گیا، ترکی کسی بھی دیش کے خلاف نہیں گیا، بلکہ یوروپ یونین میں شامل ہونے کے لیے گڑ گڑاتا رہا۔ جو لوگ گستاخ فرانس والے ہیں، سویڈن میں جہاں قرآن شریف شہید کیا گیا، اور یہ ناروے میں قرآن شریف شہید کیا گیا، فرانس کے پریزیڈنٹ نے حضور کی شان میں گستاخی کری، اس ترکی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی نیٹو سے نکلا، نہ ہی یوروپ یونین کے خلاف کوئی فیصلہ لیا، بلکہ ان کے ساتھ پارٹیاں کری، ساتھ میں رہا ترکی کی گورنمنٹ، بزنس کیا، ہاتھ ملایا، ساتھ میں رہا۔ تو یہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ان کا معاملہ چلتا رہا، اور اب بھی چل رہا ہے اس ٹائم بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین سے غداری ہے، دین سے بغاوت ہے۔ فلسطین کٹتا جا رہی ہے، مرتا جا رہی ہے، فلسطین کے لوگ، کوئی ایکشن نہ ہے۔ یہود مسلمانوں کو اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن، فلسطین کو ختم کرا جا رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے۔ مدد بھی کی اس ترکی میں، رجب طیب اردوغان نے چپ چاپ 2024 کے اندر پورے سال ترکی نے، سعودی اور جارڈن نے مل کے اسرائیل کو راشن پانا کھانے پہنچایا ہے، اس وقت جس وقت فلسطین کے لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ غازہ کے اندر ناکہ بندی ہے، کھانا پانی پہ لگی ہوئی پابندی ہے، اس ٹائم ترکی نے مدد کی ہے، اس لیے ترکی چھینا گا مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ قرآن شریف میں بھی یہ بات، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان تتولاؤ یستبدل قوما غیرکم، جو ذمہ داری ہم نے تمہیں دی ہے، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے دین کے لیے جو چیز تمہیں دی ہے، حکومت دی ہے، مشن دیا ہے، اگر تم اس کو پیٹ دکھا دو گے
तो हम तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे। तुर्की यहाँ छीनेगा, ये रिवायत भी पूरी होनी जो और लोगों के ऊपर भी है, अरबों के ऊपर भी है। ये छीनेगा तुर्की, क्योंकि इस्लाम के साथ गद्दारी की। फिलिस्तीन के लोग भूखे मर रहे हैं और तुर्की का प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान बिजनेस भी उनके साथ कर रहा है, कारोबार भी, आना जाना, खाना पीना, हथियार कंपनी, सारी चीज़ मगरिब के मुल्कों के साथ है, नेटो के साथ है, इसराइल के साथ है। तस्लीम मान लो कर लिया इसराइल को, लिखित रूप में नहीं करा तुर्की ने इसराइल को तस्लीम, लेकिन कारोबार आना जाना सब शुरू हो गया। तो मान लो तस्लीम कर लिया किसको? यहूद को, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, उस यहूद को, इसराइल को तस्लीम कर लिया उन्होंने तुर्की ने। अब ये छीनेगा कैसे? हदीसों में आता है, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी इस चीज़ को पर तकरीर की थी। अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने भी इस चीज़ को पर तकरीर की थी। क़यामत से पहले नबी ने फरमाया था, जब तीसरी जंग अजीम होगी तो ईसाइयों में 3 बड़े फ़िरके लड़ेंगे। 3 फ़िरकों में लड़ाई होनी ईसाइयों के, क़यामत से पहले, यानी कि इमाम मेहदी आने से पहले। निशानी क़यामत से पहले इमाम मेहदी आने से पहले तीसरी जंग अजीम। और तीसरी जंग अजीम में ईसाइयों के 3 बड़े फ़िरके लड़ेंगे आपस में, जिसमें से 2 फ़िरके एक तरफ होंगे और 1 फ़िरका एक तरफ होगा, यानी कि 2 एक तरफ और 1 सिंगल फ़िरका एक तरफ होगा। इनमें लड़ाई होगी, इनमें जंग होगी बहुत बड़ी। तो ये 3 फ़िरके लड़ेंगे आपस में ईसाइयों के। तो 2 फ़िरके जो होंगे, एक सामने वाले फ़िरके को, सिंगल फ़िरके को हरा देंगे, यानी कि एक फ़िरके के अंदर जहाँ एक फ़िरके के ईसाइयों की जमात होगी, वो 2 फ़िरके उसके ऊपर गालिब आ जाएंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ये तीनों फ़िरके लड़ते 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 इनमें लड़ाई होगी बहुत बड़ी, पूरी कुस्तुनतुनिया तक आ जाएंगे। और कुस्तुनतुनिया जो है, यानी कि तुर्की, इसके ऊपर उन दोनों फ़िरकों का कब्जा हो जाएगा, जो 2 एक तरफ फ़िरके जिन्होंने एक सिंगल फ़िरकों को हराया है, उन दोनों फ़िरकों का मिलके कब्जा हो जाएगा कुस्तुनतुनिया के ऊपर। ये लड़ते लड़ते कुस्तुनतुनिया तक आएंगे। अब ये 3 फ़िरके हैं कौन कौन से आज के ज़माने में? आज के ज़माने में नबी ने कहा 3 फ़िरके लड़ेंगे, तो वो 3 फ़िरके आज के ज़माने में है कौन कौन से? एक है, ये मेरा गुमान है, जो मैंने हदीसों को देख कर जो अंदाज़ा लगाया है कौन सा फ़िरका है, किन किन में लड़ाई होगी। तो एक है इनमें प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक और एक है ऑर्थोडॉक्स। ये 3 बड़े फ़िरके हैं ईसाइयों में, तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब ये दुनिया के अंदर ये कहाँ कहाँ है लोग? अमेरिका और यूरोप, इनमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन दोनों जगह पर, अमेरिका में और यूरोप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये बहुत ज़्यादा तादाद में। और ऑर्थोडॉक्स से तीसरा फ़िरका, वो है रूस के अंदर, आज का रूस जो है, ऑर्थोडॉक्स वाले रूस के अंदर हैं। तो ये बात उस हदीस से जाकर मिल रही है, जहाँ हदीस में है ना कि 3 बड़े फ़िरके लड़ेंगे, 2 फ़िरके एक तरफ होंगे और 1 सिंगल फ़िरका एक तरफ होगा। तो ये आज 2024-25 में ये रिवायत पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक फ़िरका सिंगल एक तरफ ही है, वो रूस वाला, रूस में ऑर्थोडॉक्स है, रूस तो एक तरफ ही है। ये ऑर्थोडॉक्स जो है वो सिंगल फ़िरका, एक हदीस में ये है ना एक फ़िरका एक तरफ होगा, तो आज की डेट में वो रूस है, जो रूस में ऑर्थोडॉक्स है, ये सिंगल एक तरफ है। और सामने 2 होंगे, तो ये प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक हैं, 2 रूस के सामने। ये यूरोप और अमेरिका में रहने वाले हैं। तो आज की डेट में रूस की लड़ाई किससे हो रही? यूरोप से और अमेरिका से। तो क्या हुआ, ये रिवाज यहाँ पूरी हुई। ये अमेरिका और यूरोप वाले ये दोनों एक तरफ हैं और रूस एक तरफ है। रूस है ऑर्थोडॉक्स और ये यूरोप और अमेरिका वाले हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ये 3 फ़िरकों में हो रही लड़ाई इस टाइम, या भी और आगे जाएगी। या भी यूक्रेन का मसला जो है, यूक्रेन से चल रही है ना, अभी शुरुआत हुई है इस लड़ाई की। ये कोई ये नहीं कि तीसरी जंग अज़ीम 1-2-4 साल में हो ख़त्म होगी, ये बहुत लंबी चलेगी। यूक्रेन से जंग शुरू हो चुकी है, यूक्रेन नहीं समझने वाला, यूक्रेन तो ख़त्म। यूरोप का एक देश तो ख़त्म हो चुका पूरा यूक्रेन, इतना कर्ज़ों में हो गया है क़यामत तक ये संभलेगा ही ना, ये तो बर्बाद हो गया पूरा। अब ये लड़ाई यूक्रेन से निकल कर आगे जाके इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन, यूक्रेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, हंगरी, रोमानी, जॉर्जिया, जर्मनी, ये सारे के सारे, और अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पैरागुआ, चिले, क्यूबा, ये सारे के सारे
एक साथ रूस से लड़ेंगे, और जब ये रूस से लड़ेंगे, रूस एक बहुत बड़ी ताकत है, तो इन तीन फिरकों में ऐसे लड़ाई होगी, यूरोप अमेरिका एक तरफ और रूस एक तरफ। और जब ये तीसरी जंग अजीम होगी तो इसमें होगा ये कि नेटो की फौज, जो नेटो की यूरोप वाली, पहले रूस इनके ऊपर भारी रहेगा यूरोप के ऊपर, फिर यूरोप के नेटो और अमेरिका पूरी ताकत के साथ रूस के अंदर घुसेंगे, रूस के अंदर नेटो की फौजें घुसेंगी। आगे चल के फ्यूचर में जब रूस के अंदर नेटो की फौजें घुसेंगी तो रूस इधर आ जाएगा, मिडिल ईस्ट की तरफ आ जाएगा। रूस अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेकर अपना ये इधर आ जाएगा मिडिल ईस्ट में, और ये रोम तब आएंगी नेटो की फौज रूस के ऊपर कब्जा करके लड़ते लड़ते ये कुस्तुनदुनिया के ऊपर आकर रुकेंगे। ये नेटो की फौज है, कुस्तुनदुनिया के ऊपर जो होगा नेटो की फौज का कब्जा होगा, अमेरिका और यूरोप का। यहाँ ये तुर्की छीनेगा मुसलमानों के हाथ से, जो हदीस में आया फतह कुस्तुनदुनिया, इसके बाद में फतह होगी आगे चलकर, पहले ऐसे छीनेगा तुर्की, नेटो की फौज का कब्जा होगा इसके ऊपर। फिर हदीस में आता है कि जो एक सिंगल फिरका हारेगा दो ईसाइयों के फिरके से, वो फिरका मुसलमानों के साथ मिलेगा, मुसलमान से इत्तेहाद करके उन दोनों फिरकों पर हमला कर देगा जिन्होंने एक सिंगल फिरकों को हराया था और कुस्तुनदुनिया के ऊपर जिन दो फिरकों ने कब्जा कर लिया था। मुसलमानों के साथ ये फिरका मिलकर कुस्तुनदुनिया के ऊपर हमला करेगा, कुस्तुनदुनिया से उन दोनों फिरकों को शिकस्त देकर पीछे को भगाएगा, और यहाँ कब्जा किसका होगा कुस्तुनदुनिया पे, एक सिंगल फिरके का और मुसलमानों का, ये दोनों मिलकर एक साथ कुस्तुनदुनिया के ऊपर हमला करेंगे, तो कुस्तुनदुनिया से नेटो की फौज को भगा के इनका कब्जा हो जाएगा। ये हदीस की रिवायत यहाँ पूरी होगी, क्योंकि ये दो बड़े ग्रुप लड़ना है, ईसाइयों के दो बड़े ग्रुप लड़ना है ये। और ये इसका जिक्र तो हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ियतानी अज़ीमतान तुकुन वैनुमा मक्तला अज़ीमा। तर्जुमा ये है हदीस शरीफ का कि दुनिया के दो बड़े गिरोह में, दो बड़े ग्रुप में एक अजीम जंग होगी, अजीम जंग। तो ये रिवायत यहाँ पूरी होगी, ये जो रूस अमेरिका यूरोप नेटो वाली फौजें लड़ेंगी, ये दो बड़े ग्रुप हैं, इनमें जंग होगी, ये रिवायत यहाँ पूरी होगी। फिर इस रिवायत में है आगे को दावा हुमा वाहिदा, और दोनों का दावा एक ही होगा। तो दावा दोनों का एक ही है, क्योंकि रूस वाले भी ईसाई हैं, अमेरिका यूरोप वाले भी नेटो वाले ईसाई हैं, तो सभी ईसाई इनमें फिरका बटे हुए हैं। दावा सबका एक ही, ये भी मानते हैं हम हज़रत ईसा अल्लाह के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़ल्लाह अल्लाह ताला के बेटे। यूरोप वाले भी ये मानते हैं, अमेरिका वाले भी ये मानते हैं, ये सारे ईसाई तो ये मानते हैं ना कि सलीब जिस पर टिकी हुई है कि ये अल्लाह ताला के बेटे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दावा तो इनका सबका एक ही है, हदीस में दावा हुमा वाहिदा, दावा दोनों का एक ही होगा, दोनों ग्रुप का दावा तो सबका एक ही है। सारे ईसाई यही मानते हैं कि अल्लाह ताला के बेटे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़ल्लाह, लेकिन ये मुसलमानों का अक़ीदा नहीं, ये इनका अक़ीदा है। ये रिवायत यहाँ पूरी होगी दावा हुमा वाहिदा वाली, कि दोनों का दावा एक ही होगा, दावा दोनों का एक ही है। और ये तुर्की जो होगा, तुर्की नेटो में से निकल जाएगा, क्योंकि हदीस में रिवायत में आता है कि तुर्क रोम से बगावत करेंगे। तुर्क तो यही यहाँ तुर्की वाले रोम से मुराद ईसाई यानी बादंतीन, ये नेटो वाले, यानी कि तुर्क रोम से बगावत करेंगे, कि तुर्की को नेटो में से निकाला जाएगा। और जो नेटो से लड़ाई जो होगी मुसलमान की जो होगी और यूरोप की होगी इनकी, ये वाली नेटो नहीं होगी आज जो है, ये नेटो तो टूट जाएगी, ये नेटो टूट जाएगी। इसके बाद में नई नेटो बनेगी, ये सारे के सारे इकट्ठे होंगे, ये नई नेटो बनेगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, या तो कोई न्यूक्लियर अटैक होगा इसराइल की अमेरिका की तरफ से, या कोई ना कोई बहुत बड़ी वजाहत होगी जब पूरी नेटो की नेटो टूट जाएगी। जब नेटो टूटेगी, ये मेरा गुमान है कि न्यूक्लियर अटैक हो या कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद में दुनिया के सारे देशों के पास एक पैगाम जाएगा, जब तीसरी जंग अजीम जब बड़े लेवल पर आगे जाएगी अगली स्टेट पर, तो सारे के सारे देशों के ऊपर पैगाम जाएगा इसराइल अमेरिका का कि अब जौन सा देश दुनिया का हमारा साथ आना चाहता है हमारे साथ आ जाए, और जो हमारे खिलाफ आना चाहता है, रशिया चाइना ईरान और ये फिलिस्तीन के साथ आना चाहता है, वो देश हमारे साथ आ जाए। तो होगा क्या, ये नेटो टूटेगी। जब नेटो टूटेगी तो नई नेटो बनेगी। अब ये नई नेटो में कौन कौन से देश होंगे, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 33 देश हैं इनमें, ये सभी ईसाइयों को देश हैं 33 देश। 42 देश होंगे यूरोप के 33, और ये 42 कितना हुआ, ये होगा 75 मुल्क एक साथ। एक ऑस्ट्रेलिया, एक पेपुआ गियाना और एक न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है 3 मुल्क ये होंगे, कितना होगा 78। एक हो गया फिलीपींस 79, एक या तो नामीबिया होगा अफ्रीका कंट्री, या फिर एक इसराइल।
तो ये कितना होगा, ये होगा 80 मुल्क होगा। तो ये 80 देशों की नई नेटो बनेगी। ये आज जो 2024-25 में 30-32 देशों की नेटो है, ये टूट जाएगी नेटो, नई नेटो बनेगी। जब ईसाई और मुसलमानों में बहुत बड़ी जंग होगी तो ये नई नेटो बनेगी। ये 80 देश एक साथ इकट्ठे होंगे सब। ये 80 दुनिया में 80 देश हैं इतने ईसाई के, 33 अमेरिका के और 42-43 के यूरोप के और 3 ऑस्ट्रेलिया के और 1 फिलीपींस। ये सब 80 देश एक जगह इकट्ठा होंगे मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई में। जब पैगाम जाएगा, अब जो सा देश हमारे साथ आना चाहता है हमारे साथ आ जाए। ये 80 देश इकट्ठे होके और ये अरब के ऊपर हमला करेंगे, मुसलमानों से लड़ेंगे, सारे मिडिल ईस्ट के अंदर आएंगे ये सब लड़ने इकट्ठे हो गए। तो ये जो इकट्ठा होने की प्लानिंग चल रही है ना, 80 देश इकट्ठा करने की, यानी कि सारे ईसाइयों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए और हम सब मिलकर एक ताकत बन के लड़ेंगे। तो ये हमारे नबी ने 14 साल पहले फरमाया था। यह है सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 3176। तर्जुमा इसका ये है, नबी ने फरमाया जब तीसरी जंग अजीम होगी ईसाइयों और मुसलमानों में बहुत बड़ी जंग, तो इस हदीस शरीफ का तर्जुमा यह है कि ईसाई 80 झंडे लेकर मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होंगी। 9,60,000 ईसाइयों की फौज मुसलमानों के ऊपर हमला करेगी, अरब के ऊपर। नबी ने कहा ना ईसाई 80 झंडे लेकर हमला करेंगे। यह सही बुखारी हदीस का नंबर 3176 इस हदीस शरीफ में है। ये रिवायत में 80 झंडे लेकर हमला करेंगे। तो ये 80 झंडे जो है आज ये हल्के हल्के सामने आ रहे हैं। 33 देश अमेरिका, 42-43 देश यूरोप को, 3 देश इसके ऑस्ट्रेलिया, पेपुआ गियाना और न्यूजीलैंड और 1 फिलीपीन। ये 80 देश इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करना आएंगे अरब के अंदर, जी लड़ेंगे। और इस जंग की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी शाम से। पहले शाम बर्बाद होगा, फिर उसके बाद में बड़ी जंग होगी। नबी ने फरमाया था इज़ा फसाद अहलुश शाम फला खैरा फीकुम, जब शाम में फसाद होगा तो दुनिया में कहीं खैर बरामद ना होगा। और एक हदीस में फरमाया हुजूर ने कि शाम को लाजिम पकड़ो, अगर शाम बर्बाद हो गया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। यानी कि शाम को सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन, सब बर्बाद होता जा रहा है। अब इसके बाद में अगले लेवल पर जंग होगी ईसाई और मुसलमानों में, बहुत बड़ी जंग होगी। और ये बात जो है ये 2-4 साल पहले की नहीं है, हमारे नबी ने 14 साल पहले फरमाया था। 14 साल हो गए इन बातों को, ऐसा नहीं है अभी 2-4 साल पहले की बात है। तो ये 14 साल पहले फरमाया कि इमाम मेहंदी की निशानी ये होगी। तो वो अब इस ज़माने में आकर वो चीज़ें हो रही हैं, वो सारे चेहरे सामने आ चुके हैं। सारी हुकूमतें, सारी ज़मीनें, सारे मशरिक़, सारे मगरिब, सारी फ़ौजें, सारे संगठन जितने भी हैं लड़ने वाले जंग में, वो सब सामने आ चुके हैं। रिवायतों में है कि मगरिब से भी जंग होगी, मशरिक़ से भी होगी, अरब भी होंगे, फ़ारस भी होंगे, शाम भी होगा। आया ना हदीस में इज़ा फसाद अहलुश शाम, शाम से भी, शाम में फसाद होगा। तो सब हो रहा है आज के दौर में, सब नज़र आ रहा है। बस समझने की बात है, समझने सब वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और निशानियाँ क्या हैं इस चीज़ की, जो यानी कि क़यामत की निशानियों में होना है ना ये चीज़। तो क़यामत की निशानियाँ तो बहुत सारी ज़ाहिर हो चुकी है। नबी ने फरमाया था कि यह है तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 2181। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुब्बिरहु फकीदुहु बिमा अहदता अहलुहु मिन बादी। नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक इंसान अपने घर से निकलने के बाद ये पता कर लिया करेगा कि मेरे परिवार के साथ मेरे पीछे क्या क्या हुआ था। अपनी इस जान के ज़रिए, हाथ मार के कहा हुजूर ने, इस जान के ज़रिए ये पता कर लिया करेगा मेरे परिवार के साथ मेरे पीछे क्या क्या हुआ था। तो आज ये प्रेजेंट टाइम में 2024-25 के ज़माने में बिल्कुल पूरी दुनिया का अंदर लागू हो चुकी है। वो है मोबाइल। कॉल करता पूछता है घर पर क्या क्या हुआ, मेरे पीछे क्या क्या बात हुई, सारी चीज़ें हैं मोबाइल के ज़रिए होती रही है। एक शहर दूसरे शहर आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है। नबी ने फरमाया था जब क़यामत की निशानियों में कि हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम, हदीस का नंबर है 2339। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यक़सूरल मालु व यफ़ीज़ हत्ता यख़रुजर रजुलु बिज़काति मालिही फ़ला यजिदु अहदन यक़बलुहा मिन्हु व हत्ता तहुदा अर्जुल अरबी मरजा व अनहरा। नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरब के अंदर माल और दौलत न बढ़ जाए और एक इंसान ज़कात लेकर निकले, उसे 100 दिनार लेकर निकलेगा तो उसे ज़कात लेने वाला कोई ना मिलेगा, इतनी दौलत हो जाएगी। और अरब के अंदर अरब की ज़मीन दोबारा हरियाली में यानी कि चारगाहों में बदल जाएगी, क़यामत जब तक नहीं आएगी। और अब प्रेजेंट टाइम में देखें 14 साल पहले फरमाया हमारे नबी ने सलाम आप पर या रसूलुल्लाह,
14 साल पहले बताया, अब वो चीज़ आकर हो रही है। पर मैं ना कि अरब में मालो दौलत बढ़ जाएगी, तो माल और दौलत की देखिए, तेल इनके पास, सोना इनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं इनके पास। अरब से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं दुनिया के अंदर। अरब और सऊदी अरब के अंदर हरियाली भी आ गई, पहाड़ों के ऊपर सारी चीज़ें आने लगी, हरी भरी घासें, सब चीज़ खेती बाड़ी होने लगी। तो ये चीज़ें प्रेजेंट टाइम में होने लगी, ये दुनिया का सामने आ चुकी है, क़यामत की निशानी का दौर है। इसलिए तीसरी जंग अजीम का निज़ाम बन रहा है साथ साथ। और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि फ़कत दलातिज़्ज़लाज़ुलु वल बलाया वल उम्रू, कि आप देखोगे जब यरूशलेम को दारुल खिलाफा बनाया जाएगा तो बड़ी बड़ी बलाएँ चलेंगी और बड़े बड़े जलजला आएंगे। तो ये हुआ कब, दारुल खिलाफा कब बना, ये भी प्रेजेंट टाइम में। अभी कुछ साल पहले सन 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसराइल की राजधानी यरूशलेम को बना दिया, यानी कि फ़िलिस्तीन को इसराइल की राजधानी घोषित कर दिया। नबी ने फरमाया वल बलाया, फिर बलाएँ चलेंगी। 2017 में राजधानी बनाया इसराइल की फ़िलिस्तीन को, और 2019 में कोरोना वायरस आ गया। ये हदीस यहाँ पूरी हुई। और उम्मत के बारे में बताया, उम्मत 73 फ़िरकों में बढ़ जाएगी। उम्मत 73 फ़िरकों में बढ़ जाएगी क़यामत से पहले। उम्मत देखा कितने फ़िरका बन गए, शिया सूफी हनफी कादियानीवाद, कितने हैं फ़िरके, नए नए मौलाई है, रोज़ नए नए फ़िरका बनना है कि अभी पता भी नहीं कितने फ़िरके हैं। हुजूर ने फरमाया था, ये हदीस शरीफ है, हदीस का नंबर है, हदीस तिरमिज़ी शरीफ, हदीस का नंबर है 2648। बिस्मिल्लाह। हुजूर ने फरमाया इल्ला बनी इसराइली तफर्रकात अला सिंतैनी व सबाइना मिल्ला। नबी ने फरमाया कि ए लोगों, बनी इसराइल में इख्तलाफ और वो इख्तलाफ की बुनियाद पर 72 फ़िरकों में बढ़ गए। व तफ्तरीक़ु उम्मती अला सलासिन व सबाइना मिल्ला। फिर हुजूर ने फरमाया, इसका तर्जुमा यह है, और मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा और वो इख्तलाफ की बुनियाद पर उनसे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 73 फ़िरकों में बढ़ जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। साहबा ने अर्ज़ किया, कालू मन या रसूलल्लाह, जन्नती की निशानी क्या हुई? हुजूर ने फरमाया, काला माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा का अक़ीदे पर होंगे वही जन्नती होंगे। यानी कि उम्मत क़यामत से पहले 73 फ़िरकों में बढ़ेगी। आज देख लो, अब से 200-250 साल पहले कोई फ़िरका परस्ती नहीं थी, सब एक अहले सुन्नत वल जमात की लाइन चली भी आ रही थी। और अब देखो 100-150 साल के अंदर कितने नए नए फ़िरका बन गए। तो ये सब जितने भी फ़िरका बनना है, ये सब क़यामत की निशानियों का आज़ार, ये क़यामत की निशानियों का और तीसरी जंग अज़ीम का, इमाम मेहंदी के आने का निज़ाम बनता जा रहा है। और इमाम मेहंदी आएंगे, दज्जाल भी आएगा। दज्जाल के कितने कितने बड़े फितने होंगे। जो पहले के अंबिया इकराम सब अपनी अपनी उम्मत को डराते थे कि दज्जाल का बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत ख़तरनाक फितना होगा। वो फितने दुनिया का सामने है, लेकिन क्या है, नज़र नहीं आ रहा है। नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इमाम मेहंदी की निशानी बहुत बड़ी है कि जब उनका ज़हूर करीब आता रहेगा तो लोग उनको भूलते रहेंगे। यानी कि जितना फितने फसाद पैदा होते रहेंगे, लोग इतना ही इमाम मेहंदी को भूलते रहेंगे। यानी कि कौन इमाम मेहंदी, क्या करेंगे, क्या तालीमात पेश करेंगे, क्यों आएंगे, वो लोग इतना ही भूलते रहेंगे। और इतना ही इमाम मेहंदी का ज़हूर का वक्त करीब आता रहेगा, और इतनी ही जंग शुरू होती रहेंगी दुनिया में, जैसे जैसे लोग उनको भूलते रहेंगे। ये जितने भी फिल्म थिएटर, बर्थडे पार्टी, क्रिप्टो करेंसी, जितने भी खेल पेल, ये है नई नई चीज़ें, सब दज्जाली फितने, नाच गाना, बॉलीवुड, टीवी वीवी, सब ये दज्जाली फितने है। यानी कि घर घर में फितना पहुंच जाएंगे। नबी अंबिया किराम कहते हैं कि दज्जाली फितना घर घर पहुंच जाएगा। तो आज घर घर में टीवी भी, घर घर में सब चीज़ घर घर में। देखो टीवी चल रहा, टीवी के अंदर फिल्म आ रही, फिल्म के अंदर पूजा हो रही, दूसरे खुदा को, झूठे खुदा को पूजा जा रही है उस फिल्मों के अंदर। फिल्म कहाँ आ रही? टीवी के अंदर। टीवी का कहाँ रखा? मुसलमानों के घर में। तो क्या कह सकते हैं, मुसलमानों के घर में कुफ्र न किया, टेक्नोलॉजी का जरिए हो रहा है, वो तो कुफ्र रिया है। ये फितने हैं जो दज्जाली फितने होंगे। ये इंटरनेट का निज़ाम पूरी दुनिया के ऊपर यहूदी छाए पड़े हैं, पूरी दुनिया के ऊपर ये दज्जाली फितनों के जरिए छाए पड़े। जो यहूदी पूरी दुनिया के ऊपर छाए पड़े हैं, ये सब हर चीज़ इनके कंट्रोल में, पैसा वैसा सब चीज़। तो ये है जो सबसे पहले शुरू में मैंने कहा, उमरानुल बैतुल मक़दिस की आबादी, यहूदियों का कब्जा होना बैतुल मक़दिस के ऊपर, इसराइल बनना, और पूरी दुनिया के ऊपर इनका कंट्रोल होना। ये है इमरानुल बैतुल मक़दिस। और इमरानुल बैतुल मक़दिस के बाद खराबुल यसरिब। खराबुल यसरिब का मतलब है यानी कि मदीने की वीरानी। अब मदीने की वीरानी यूँ समझ लीजिए कि जब 2017 में अमेरिका ने फ़िलिस्तीन को राजधानी बना दी इसराइल का, उसके बाद में कोरोना वायरस आया, उनमें मदीने की वीरानी हुई, मदीना वीरान हो गया, अजानें और नमाज़ बंद हो गई। तो या यूँ समझ लीजिए मदीने की वीरानी हो गई, या फिर यूँ समझिएगा जब सऊदी अरब के अंदर जंग होगी बड़ी, तब मदीने की वीरानी होगी। और मदीने की वीरानी से हो सकता है कि जंग में हो, और हो भी सकता है कि लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस की वजह से जो ये मदीने को पाबंदी लगाया कि नमाज नहीं होगी, अजान नहीं होगी यहाँ पर, जबकि दुनिया के सबसे बेहतर और सबसे सेफ जो जगह थी वो मदीना शरीफ है, जहाँ आदमी बीमारों से दूर रहता।
لیکن کیا ہوا, سعودی حکومت نے وہاں پابندی لگا دی کہ نماز نہیں ہوگی, اذان نہیں ہوگی, کوئی نہیں جا سکتا. یہ بھی سبب ہو سکتا ہے اس چیز کا. اور سعودی عرب کا حالات میں, سعودی عرب کا کیا ہوا, عربوں میں کیا ہوا, یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا, حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یکون اختلاف عند موت خلیفۃ, ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا اور حکومت لینے کے لیے 3 شہزادے لڑیں گے, ہر کوئی خلیفہ کا بیٹا ہوگا. یعنی کہ عرب کے اندر ایک بادشاہ کی موت ہوگی, اس بادشاہ کی موت کے اوپر اختلاف ہوگا جب عرب کا اندر سے نظام یہاں سے بگڑا ہے. کیونکہ عرب کے اوپر سے بھی حکومت تو جانی ہے ہی, بالکل جانی ہے, کیونکہ اسلام کا نظام تو ختم ہو چکا بالکل, اور مغربی اور شیطانی دجالی اور امریکی نظام سارا آ چکا عرب کے اندر. تو یہ تو نظام سارا ختم ہوگا. اس کے بعد میں یہ لوگ ہٹیں گے, امام مہدی کا اگر پوری دنیا کے اوپر وہاں سے بیٹھ کر حکومت کریں گے, پھر یہ اس قرآن شریف کی آیت پوری ہوگی, ان تتولاؤ یستبدل قوما غیرکم, جو مشن, جو ذمہ داری, جو دین کی ذمہ داری ہم نے تمہارے حوالے کی ہے, اگر تم اس کو پیٹ دکھا دو گے, تم ہٹائیں گے, کسی اور کو لے آئیں گے. یہ روایت یہاں پوری ہوگی, پھر ہوگی نا, ہوگی ایسے ہی. یہ تو اللہ کا نظام ہے.